little up, but Oh, beautiful big bomb. striking. They've given up on wrestling. Well, nobody's keeping the guard up though. Straight armbar. Knees him, gets up, lifts him up, and rock bottom. The technical name for this is rock bottom. Quick recovery. Oh, he's coming in for Backhanded backhand. fist. Backhanded fist. Bro, मैंने सोचा कि वो करेगा, अभी रॉक बॉटम दिया, उसके बाद वो क्या करता है, द रॉक ऐसे ऐसे चल के आता है और People's elbow. पीपल्स एल्बो. Greetings fight fans, namaskar and welcome to a brand new episode of Bollywood Breakdown. मेरा नाम है वॉन सक्सेना और आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक MMA मूवी सुल्तान. Yes. Joining me as always is Siddharth Singh, founder and head coach of Cross Train Fight Club. एक मल्टी डिसिप्लिनरी मार्शल आर्टिस्ट हैं. इन्होंने बचपन से बॉक्सिंग करी है स्कूल टाइम से, उसके बाद इन्होंने मोए थाई और जुजित्सु भी सीखी है एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप MMA ट्रेनर्स इन द कंट्री. वेलकम ब्रदर. Thank you. सिड, जो ये वाली फाइट हम देखने वाले हैं, दिस इज सुल्तान वर्सेस टायरन वुडली. टायरन वुडली UFC के भी एक चैंपियन रह चुके हैं वेल्टरवेट में. Welterweight champion. हाँ. And 4 title defenses. And he's now got a big fight coming up against Jake Paul, who are the two YouTubers who are doing so well in professional boxing. Yeah, and I think Sultan was one of the first films जिस पे टायरन ने काम किया था. उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम किया. रैप आर्टिस्ट भी बने कुछ टाइम के लिए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. चलो देखते हैं कि सुल्तान के अगेंस्ट उनकी फाइट कैसी रही. आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है because it's a wrestler fighting a wrestler. कुबरा, ये मैच इंटरेस्टिंग ही नहीं, बहुत ही एंटरटेनिंग भी होने वाला है. Wrestlers Just fighting look each at that other. swagger from Tyron. Come on. It's almost an invitation के आजा wrestling खेलते हैं यहाँ पे. हाँ, वो इसलिए क्योंकि टायरन भी एक रेसलर रह चुके हैं. Going for the ankle pick. So generally, though wrestlers when they fight, they don't go with this stance. So the stance. Firstly, let's start off with the stance. ये काफी स्टोरी लाइन है इस फाइट की कि 2 wrestlers हैं. Right. एंड जनरली क्या होता है जब 2 wrestlers फाइट कर रहे होते हैं, दे अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रेसलिंग. तो इट्स जनरली इट बिकम्स अ स्ट्राइकिंग बैटल. यू नो, थोड़ा पंचिंग करोगे आप, थोड़ा सा किकिंग करोगे, यू विल ट्राई एंड establish striking, and then you'll take someone down to the ground because wrestlers traditionally are very difficult to take down. Right, especially in the starting of the round. Yeah. दोनों ड्राई हैं तो अभी ग्रिप्स वगैरह बहुत इजीली आ रहेंगे if they engage in straight away a wrestling battle. Yeah, so that's why. So initially, generally fights में ऐसा नहीं होता. Generally you'll see in the beginning of the fight अगर 2 wrestler हैं, they'll stand up, they'll trade punches, they'll get their range. यहाँ पर दोनों they're ready to shoot. तो ऐसे मैंने बहुत कम ही देखा कि 2 fighters, wrestlers दोनों starting में ही wrestling start कर रहे हैं because अगर अब इतना punches down the middle, knees, high kicks, push kicks, all of them become available. Observe this, we'll not talk about it all the time. But so left leg आ गया और power hand right वाला पीछे. तो Woodley traditional stance orthodox में रहते हैं, Sultan keeps switching. So that's interesting thing to notice. They both go and fight. It's a beautiful throw. To pull off a move like this, I think it has to be a surprise move. It's over the shoulder throw, तो इसमें जूडो में बहुत पॉइंट मिलते हैं, रेसलिंग में भी होते हैं थ्रोज. बट इतना अर्ली फाइट में when आपका ओपोनेंट उसको पता है कि आप भी रेसलर हो, वो भी रेसलर है, वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ. रेसलिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन ओपोनेंट का पहले एडजस्ट करना पड़ता है. उसको अगर आपको इधर ले जाना है लेफ्ट साइड, तो पहले उसको राइट मूव करो, वो रिएक्शन देगा, तब उसको लेफ्ट में. तो इस टाइप के थ्रो में उसको आपको पीछे धक्का देना पड़ता है, वो रिएक्ट करता है, फिर उसको आप वो द शोल्डर लेके आते हो. वो जूडो थ्रो बट टायरन लाइक मैं दिखाता हूँ तेरे को NCAA की रेसलिंग. Tyron just gives it back to Sultan straight away. Does a beautiful arm drag throw by. So beautiful takedown. तो उसको भी रेसलिंग में पॉइंट्स मिलते हैं. तो they both equal now in terms of the points. Both are equal. Excellent arm drag. Beautiful Kalajan. That is when Sultan strikes. Beautiful fireman. उसने arm drag किया, head नीचे, holds the leg, throw over the shoulder. Beautiful throw है. But Vaughn, इसमें because it's MMA. Yeah. There are no points for any of this. Exactly. Yeah. आपने अगर उसको थ्रो कर दिया, वो उठ गया वापस, तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता. I'm surprised कि वो थ्रो करने के बाद they're not going after him, keep him on the ground.
टॉप कंट्रोल, Yeah, लेकिन दोनों आपको कोई दिखाना टॉप है। कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, आपको दिखाना होता है जजेस को कि आपने गिरा दिया, उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको आप डोमिनेट कर रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रो किया उठ गया, उसने थ्रो किया आप उठ गए, तो कोई पॉइंट किसी को एडवांटेज नहीं मिलता है इसमें। आई थिंक नाउ दे गोना चेंज देयर गेम प्लान्स। वी आर ऑलरेडी अबाउट अ मिनट इनटू द फाइट। Body lock and throw. And again, see, this is what you will never see, almost never see, because अभी यहाँ पर एक desperate attempt है कि ground fighting नहीं दिखानी है, सिर्फ Right. wrestling दिखानी है। Right. Generally अगर किसी को आप फेंकते हो और वो knees and elbows पे है, तो उसको turtle position बोलते हैं। टायरन ने गया, उनने देखा कि सुल्तान turtle position में है, बहुत defensive position में है, rather than attacking him, उन्होंने उनको फिर उठाया, अपनी एनर्जी वेस्ट करी और फिर फेंका। यूजली एमएमए में देखते हैं कि टर्टल पोजीशन मिलती है तो आप उसमें जाते हैं, आप अपने हुक्स डालते हैं, पैर के सीट बेल्ट करते हैं, चोक ट्राई करते हैं, Right. आप उसको दोबारा उठा के एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, आप एनर्जी कंजर्व करते हैं। एंड आफ्टर दैट उसने फिर उठने दिया, द फाइट गोस बैक टू द फीट नाउ। It was a great chance to turtle up, but Oh, beautiful big bomb. striking, they've given up on wrestling. Nobody's keeping the guard up though. Yeah. Body Body shot, exposed, left elbows are hook. wide. Yeah. आप नोटिस करोगे कि दोनों की स्ट्राइकिंग में दोनों के हाथ इतने नीचे हैं कि फेस पूरा खुला हुआ है शॉट्स के लिए। फेस खुला हुआ है, बॉडी खुली हुई है, आपके एल्बो जब भी वाइड होते हैं आपकी बॉडी ओपन हो जाती है। तो अगर आपने कभी भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स और फाइटर्स को देखा है, उनके हमेशा एल्बोज अंदर रहते हैं। एल्बोज इसलिए अंदर रहते हैं क्योंकि रिब्स को बचाना पड़ता है, रिब्स बहुत वीक होते हैं। तो रिब्स में अगर स्ट्राइक लगेगा तो आपका रिब इजीली टूट सकता है। तो एल्बोज हमेशा अंदर रहते हैं, हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं। बॉक्सिंग में ये चल जाता है, बट एमएमए में बिकॉज ग्लव्स बड़े होते हैं, पफी होते हैं, तो एमएमए में ग्लव्स छोटे होते हैं, तो यूजुअली अगर आप डिफेंस होते हैं तो आप पूरा ऊपर, पूरे फिंगर्स खोल के ऊपर तक डिफेंड करते हैं। सर खुला हुआ है, बॉडी खुली हुई है, रिब्स खुले हुए हैं, तो नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी अगेंस्ट गुड स्ट्राइकर्स। टायरन वुडली पे फुल नॉकआउट पावर है वैसे, अगर आप उनकी एक्चुअल फाइट्स देखें तो Overhand. अभी हाँ ये जो 2-3 ओवरहैंड ही पड़े सुल्तान को, उन्हीं में सर घूम जाता था उनका। That's the issue, no one. When you strike with your elbows out, the body will explode. Keep your elbows. Double leg gets stuffed, and look at this. ये तो करना ही था, कुछ ना कुछ WWE का वाला। सुल्तान पावर बॉम्ब, बहुत गंदा सेटअप था। तो again what this, we have to talk about this. सिड ये जो इसने अभी WWF में तो सबने ये देखा ही होगा, DDT या क्या कहते हैं इसको इसे, बोलते पावर बॉम्ब। पावर बॉम्ब के लिए बंदे को उठा लिया। ये अलाउड है एक्चुअल मिक्स मार्शल आर्ट्स रूल्स में? टेक डाउन में अलाउड है, इट्स अ टेक डाउन, इट्स अलाउड, यू कैन okay. स्टैंड। एमेच्योर टूर्नामेंट्स में काफ़ी बार बोलते हैं कि स्लैम्स अलाउड नहीं है, बट प्रोफेशनल में अलाउड है। एंड क्या अलाउड नहीं होता है, आप किसी को स्ट्रेट अप उठा के उसके नेक पे नहीं फेंक सकते हो। अच्छा, वो अंडरटेकर वाला। अंडरटेकर वाला टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर नहीं कर सकते हो, बट दिस इज अलाउड इन एमएमए ऑल ऑफ इट। काफ़ी सारे जिu-jitsu टूर्नामेंट होते हैं जिसमें ऐसी स्लैमिंग अलाउड नहीं होती है, बट एमएमए में अलाउड होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द टेक डाउन, Yeah. सेटअप टू द टेक डाउन। ऑलराइट, सुल्तान केस के अगेंस्ट हैं, टायरन वुडली खड़े हुए हैं वहाँ पर और सुल्तान भागते हुए आते हैं डबल लेग करने के लिए। ऐसे कभी डबल लेग काम नहीं करता है, क्योंकि क्या होगा भाई अगर ऐसे कोई भगता हुआ आएगा डबल लेग के लिए? तो एक नी लगेगी सीधे मुंह पे। अगर आप भाग रहे हो ऐसे, नी खाओगे एंड इट विल बी ऑल ओवर। तो हमेशा आपको स्ट्राइकिंग करनी पड़ती है जिससे ओपोनेंट के हाथ ऊपर जाएं। उसके अगर हाथ ऊपर हैं, डिफेंस कर रहा है, तो ही कांट हिट यू। ऊपर मारा, ऊपर मारा, ऊपर मारा, उसके हाथ ऊपर, आपने लेवल चेंज किया और पैर को पकड़ा। आप भागते अगर ऐसे आए तो आप खाओगे और उसके भी हाथ नीचे रहेंगे डिफेंस करने के लिए। और टायरन वुडली ने रोक लिया वीडियो में भी, राइट। उनने शूट किया, उन्हें डिफेंड कर लिया और फिर वहाँ से पावर बॉम्ब, बहुत ही WWF वाला मूव है, बट इट कैन बी पुल्ड ऑफ, लाइक पावर बॉम्ब कैन बी पुल्ड ऑफ अगर समवन इज गॉट अ लॉट ऑफ energy, lot of cardio, lot of strength, he can do it, but it's waste of energy. Yeah. Also we have seen कि of course legs की position थोड़ी अलग है। पावर बॉम्ब में दोनों पैर उसने यहाँ पे अपने कंधों पे चढ़ाए हुए हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन से तो बंदों को ट्रायंगल चोक भी लग सकता है, जो हमने देखा है पहले एमएमए में। एंड काफी बार होता है, काफी बार ओपोनेंट्स, अपने एमएमए में देखा होगा, ट्रायंगल चोक लग गया है, वो उसको उठा के हाँ, रैम्पेज जैक्सन थे एक यूएफसी के फाइटर, वो बहुत फेमस थे उठा के ऐसे मारने के लिए और ओपोनेंट्स नॉकआउट। तो ये पोजीशन बहुत कॉमनली देखी हुई है एमएमए में, बट ऐसे एग्जैक्टली पावर बॉम्ब वाला नहीं, बट ट्रायंगल से इस पोजीशन को देखा हुआ है। स्लैम करना, राइट। ओह शिट, यस, Good technique. किक, नाइस गेट अप आल्सो, technical stand up. Yeah. And this is a legit technique. जब आप फाइट में एक
एक बंदा नीचे है एक ऊपर है, तो नीचे वाला एक्चुअली काफी डेंजरस होता है राइट, क्योंकि वो अप किक मार सकता है। और अप किक्स आपके चिन पे अगर अच्छे से लग गए तो बहुत नॉकआउट्स आपने देखे हुए हैं यूएफसी के, जिसमें अप किक से हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने ओपोनेंट्स के आप पैर कंट्रोल कर लो। तो वही टायरन वुडली ने किया, डबल एंकल ग्रिप पकड़ा और उससे आपके पैर, ओपोनेंट के पैर फंस जाते हैं, यू कांट मूव। एंड देन आपने जब डबल ग्रिप ले ली तो उससे आप काफी अटैक कर सकते हो। आप पैरों को एक साइड फेंक सकते हो करके, हाँ। आप साइड कंट्रोल ले सकते हो न्यून बेली, या फिर जैसे टायरन वुडली ने किया, पैर पकड़े और फिर अपनी किक्स मारे थाई पे। लेजिट टेक्निक वर्क्स। एंड उसके बाद सुल्तान ने भी बहुत लेजिट टेक्निक की। उनने किया है टेक्निकल स्टैंड अप। उनने उनको अपने फ्री, एक पैर को फ्री किया, टायरन को पुश किया, धक्का दिया और फिर डिफेंड करते हुए खड़े हुए टेक्निकल स्टैंड अप। तो बहुत अच्छी टेक्निक थी। अगर सुल्तान ऐसे ही बैठ जाते ऊपर, जैसे लोग सुबह अलार्म बजता है हम लोग उठते हैं, अगर वो ऐसे उठे अंडरटेकर की तरह तो नी खाएंगे मुंह पे और फाइट खत्म हो जाएगा। तो हमेशा डिफेंड करना है, टेक्निकल स्टैंड अप करना है, एल्बो से, हैंड से, बेस अप करके पीछे, गोइंग अवे फ्रॉम द ओपोनेंट एंड हेड कवर करना है। क्योंकि अगर टायरन वुडली ने वो ओवरहैंड मारा, जिसके लिए वो बहुत फेमस है, तो चाहे जो भी हो दुनिया में, he'll get knocked out। तो सुल्तान ने कवर किया एंड देन ही स्टूड अप। वेल डन। Okay. Big leg kick, man. Beautiful Muay Thai, beautiful roundhouse kicks. Again, such good striking यार। Like, where is this Tyron Woodley? UFC में हम लोग ने क्यों नहीं देखा? इस फिल्म में जिसने ट्रेन किया है टायरन वुडली को, वो एक्चुअली उनका ट्रेनर है। ये डेन थॉमस, अगर आप सुन रहे हो, खैर हिंदी नहीं समझ में आई, लेकिन आज जो टायरन वुडली का ट्रेनर है, यू गॉट गेट दैट स्ट्राइकिंग इन नाउ। बहुत ही फ्लूइड स्ट्राइकिंग टायरन वुडली की। यूजुअली इसको सेटअप करना पड़ता है। यूजुअली आप थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करते, बॉक्सिंग करते हो, जैब फेंकते हो, फिर किक मारते हो। आपका पहला जो अटैक होता है यूजुअली ब्लॉक हो जाता है। तो आपको एक दो चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, उसके बाद आपका जो इवेंचुअल गोल होता है वो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हेड किक फेंकनी है तो मैं हेड किक से शुरू नहीं करूँगा, मैं जैब करूँगा, बॉडी पे क्रॉस मारूंगा, लो किक मारूंगा, फिर हेड किक मारूंगा। मुझे पता है वो 2-3 चीज़ रोक सकता है, बट इवेंचुअली वो लैंड हो जाएगा जो मुझे करना है। तो यहाँ पर तो खड़े हुए कॉम्बिनेशन ऑफ किक्स, कॉम्बिनेशन बस ही इज टीइंग ऑफ ऑन सुल्तान अभी इस समय। यू कैन लिफ्ट योर नी अप एंड आपका नी एंड एल्बो कनेक्शन जब बन जाता है तो द किक गेट्स ब्लॉक्ड। राइट। तो अभी यहाँ पर टायरन ने लेफ्ट किक फेक की, सुल्तान ने राइट नी उठाई डिफेंड करने के लिए, उनने किक नहीं किया, इंस्टेड राइट किक फेंका। एंड अब क्या होता है, आपका राइट लेग खुला उठा हुआ है डिफेंड करने के लिए, लेफ्ट साइड पूरी खुली हुई है। तो टायरन ने स्विच करके दूसरी साइड किक मारा। तो बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक। That's what hurt him, I think. That's what's smashed his rib. But he's still Oh, Sultan big is front down. teeth, Here comes teeth Tyron. goes down. Saved by the bell. Oh, no. This is not good. This is not good. Because this What match is a also trouble. very impressive, Vaughn, is that Sultan has like the cheapest mouthpiece you can get, like the mouth guard, वो 200 रुपए वाला जो mouth guard होता है वो है, and Tyron Woodley has this fantastic like state of the art custom designed Sure, वाले वो अपना mouth real guard. mouth guard लेके आया। So that's again you can see that they're showing that one is like a hardcore professional fighter and एक बेचारा हमारा अखाड़े वाला, local अखाड़े वाला fight कर रहा है। तो yeah, end of the round and Seeing someone Salman come बच गए। down to the cage, it's not good. I mean, क्या हो गया? तेज तन्ने आवाज नहीं आई। किस चीज की? ससुर ने पसलियां तोड़ दी। कॉर्नर वाला उसका रिब केज चेक कर रहा है ऐसे जिसको दबा के। यहाँ पर आया भूल जाओ। तो यूजुअली आप देखेंगे जब राउंड एंड होता है उसके बीच में, जब दोनों राउंड्स के बीच में कॉर्नर मैन आता है, एक कटमैन आता है जो आपके कट्स वगैरह साफ करेगा, उनके ऊपर वैसलीन लगाएगा, और डॉक्टर और कमीशन का भी बंदे आते हैं। वो आपको चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करता है आपको सब कुछ सही दिख रहा है। अगर ऐसे हड्डी टूट जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर ही कॉल ऑफ कर देगा, फाइट कर देगा। and they come and ask you, they ask as a fighter and as a cornerman कि फाइटर को चोट लगी है नहीं लगी है। यूजुअली कट्स में होता है। कट्स अगर आपको कट यहाँ पर लगा तो यूजुअली फाइट स्टॉप कर देते हैं, खून आपके आंख में जाता है एंड दे डोंट कांट रिस्क कि नहीं दिख रहा है। एंड रिब्स अगर टूटा हुआ है तो रिब्स, शोल्डर, एल्बो कुछ भी टूटा हुआ है, बिकॉज MMA इज अ वायलेंट स्पोर्ट एंड सारे प्रमोशंस दे वांट टू मेक श्योर फाइटर्स सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। कोई भी चोट लगता है तो स्टॉप द फाइट, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता है। तो यहाँ पर रेफरी नहीं आया, रेफरी ने कुछ नहीं पूछा। कॉर्नर ने पूछा कि रिब्स टूटी हैं, जो हाँ टूटी हैं, उसने दबा के और देखा और भाई टूटी है पक्का टूटी है।
तो हाँ, कॉनर कह रहा है गिव अप मार दो, सुल्तान कह रहा है सुल्तान हूँ यार, आई कांट गिव अप नाउ। एंड टायरन वुडली का अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखो हाँ। तो इतना कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल थके नहीं है, कट्स लगे हुए थोड़े बहुत इधर, बट थके बिल्कुल नहीं है। Right. सुल्तान को देखो तो लग रहा है कि मतलब खत्म है सीन। फुल स्वैगर दिया है टायरन वुडली ने क्लोज अप शॉट्स के लिए। अपने डायरेक्टर ने कहा टायरन आई नीड यू टू लुक लाइक यू नो यू गॉट द स्वैगर, यू आर नॉट टायर्ड। टायरन वुडली कहते हैं अच्छा ठीक है। See you later, bro. See you later bro। And here we are. तो This is कॉर्नर the का second कोई round of the टेक्निकल एडवाइस कोई नहीं है, technical advice नहीं है। कि वो- अपने रिब्स को बचाओ, दर्द हो रहा है, गार्ड नीचे रखो, टेक डाउन ट्राई करो। सिंगल लेग किया है सुल्तान ने और सक्सेसफुली टेक डाउन किया है सिंगल लेग से। काफी सारे कलादान किए, बट कॉर्नर ने ऐसा कुछ नहीं बोला करने को। ये उसका टेक्निकल कॉर्नर नहीं है, इसका एक्चुअली ट्रेनर रणदीप हुडा है जो अपने जिम में बैठ के Gym में- फाइट सुन रहा है। ना पता बैंड हो यहाँ पे। ये हो सकता है कि स्केड्यूलिंग वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जिस दिन ये शूट हो रहा हो और रणदीप बिजी हो, शायद उस दिन उनका कोई और मूवी का शूट चल रहा हो, तो सेपरेटली शॉट किया हो उसको। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, ये जो फाइट सीक्वेंस है यहाँ अपने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शूट हुआ था 2016 में। एंड वी वर देयर। वहाँ पे एक एसएफएल का इवेंट चल रहा था आउटडोर ग्राउंड्स में, और पीछे इनने पूरा सेट वेट लगाया हुआ था जैन स्टेडियम पे लाइटो वाइटो के साथ। और वहाँ पे अंदर से आवाजें आ रही थी चीखने की। मैं कहा भाई क्या इवेंट चल रहा है। एक्चुअली सुल्तान की शूटिंग चल रही थी, वी हैड नो क्लू। बहुत हाँ, बिकॉज अगर खोल देते तो फिर राइट हो जाता सब। ये सलमान खान अंदर पिट रहा है भाई। करेगा व्हिच इज द रेफरी एंड नॉट किसी फाइटर के कॉर्नर में जाके क्या हुआ, ही विल टॉक टू द रेफरी। कॉर्नर मैन वैसे केज से दूर आते ही नहीं है, वो सीधे बाहर जाके अपने कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं कि अपने फाइटर को अब वहां से इंस्ट्रक्शन दे। जब भी आप केज पकड़ते हैं तो इलीगल टेक्निक होता है, तो रेफरी कैन कम इन एंड ही कैन डिडक्ट अ पॉइंट। राइट। वार्निंग दे सकता है, पर अगर उसको सिवियर लगता है कि अगर ये चीटिंग कर रहा है तो एक पॉइंट कर सकता है। बहुत सिवियर पेनल्टी होती है केज पकड़ने की, बट सुल्तान स्टिल मैनेज टू टेक हिम डाउन। तो सुल्तान का ये सिंगल लेग टेक डाउन बहुत अच्छा है, बहुत टेक्निकल है। व्हाट ही डज ब्यूटीफुली इज कि सिंगल लेग में जनरली जब आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, तो ओपोनेंट का एक पैर आपके दो पैर के बीच में होता है। अगर उसका पैर इनसाइड आता है तब ही कैन स्टार्ट डिफेंडिंग। इफ द लेग आउटसाइड जाता है देन यू कैन स्टार्ट अटैकिंग अ लॉट मोर। तो इफ यू सी इन दिस टेक्निक, सुल्तान ने टायरन का लेग लिया एंड ही टुक इट across his body, which exposed Tyron's entire body to Sultan, and then Sultan was able to take him down straight into side control. आप सिंगल लेग से भी टेक डाउन कर सकते हैं, पर आप सिंगल लेग से टेक डाउन करते हैं तो आप ओपोनेंट के गार्ड में गिरते हैं, तो हाफ गार्ड या ओपन गार्ड। बट आप लेग अक्रॉस करके टेक डाउन करते हैं तो आप साइड कंट्रोल में करते हैं, तो लेग्स ऑलरेडी ओपोनेंट के इक्वेशन के बाहर हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक डाउन। एंड स्ट्रेट अवे साइड कंट्रोल में जब गए हैं सुल्तान, ही स्विचेस टू अ स्ट्रेट आर्म बार from cross side, which is again a very high percentage move. It really works, but Tyron Woodley has a really unorthodox escape, which we are going to see now. We're going to see how he escapes this straight arm bar. Knees him, gets up, lifts him up, and rock bottom. The technical name for this is rock bottom. Bro, ये तो उसने पूरा डांस मूव कर दिया। This is what The Rock used to do in WWF जब उसका नाम था। शोल्डर को पकड़ा, एक हाथ अक्रॉस उठाया एंड रॉक बॉटम। तो that's the technique that Tyron Woodley did, and ये कभी MMA में मेरे ख्याल से नहीं हुई है। Sure, yeah. और वो भी एक मूव में, you know, you do that reversal, रिवर्स करके उनके लिए बनाया गया है। And I was wondering क्यों नहीं टायरन कूदा उस पे? He's also walking away. He's walked away. राउंड खत्म नहीं हुआ है अभी, just to be clear, राउंड खत्म नहीं हुआ है। Referee is not anywhere to be seen. The referee again, you know, दो fighters हैं, एक unconscious पड़ा हुआ है नीचे। रेफरी उससे पूछ रहा है भाई ठीक है आगे खेलेगा। एंड सुल्तान जी अपने कॉर्नर की तरफ देख रहे हैं, शायद देखेंगे अभी। All fighters need that extra motivation and he gets it. Oh wow, right there. That's quite some motivation, Baba babe. Quick recovery. Oh, he's coming in for backhanded fist. He gets okay and he's out. Bro, मैंने सोचा कि वो करेगा, अभी रॉक बॉटम दिया, उसके बाद वो क्या करता है, द रॉक ऐसे ऐसे चल के आता है और पीपल्स एल्बो सोचा पीपल्स एल्बो देगा, लेकिन इंस्टेड ही डज लाइक सम वियर्ड बैक फिस्ट।
And the funniest thing again is that audience member. You know, the audience, if you go back and see the shot of the audience, लोग डंडे में मुस्टैच बना रखी है वो उसको पकड़े हुए हैं और सर में उन लोग ने हैट बना रखी है सुल्तान. Yes. This is something that UFC can learn from. You know, this For sure, man. For sure. Yeah. इतना fan following. जैसे खबीब के फैंस वो दागिस्तानी हैट पहनते हैं. सुल्तान की मुस्टैच. He's relocated his he's put shoulder. back Yeah. in place. सुल्तान करता है चढ़ाई. Crowd behind Sultan. He's Oh, like, yeah, my ribs don't ribs are hurt fine no now. more. अब प्यार का सुपर पावर आ गया then. Ribs are fine. For Sultan, they're hoping for the best. Oh, come on, Tyron, hands up, bro. Shoots for a double leg. Like caught in a Kimura trap and exposes his ribs. So that's a legit defense from. That's a legit defense, and it's a technique which is very commonly used in both grappling and in MMA. It's called the Kimura trap, where you control your opponent's one wrist with your grip of two hands. Very strong, very solid. We at CrossTrain, we have Rachit who does it a lot. We have Tarun who does it a lot. So yeah, Kimura trap really works. The only risk is that you leave your body exposed. तो या तो अगर MMA में if the guy doesn't finish it, आप उसको body को मार सकते हो, या if the guy doesn't hold your hand properly, you can also take his back. Right. There is some risk involved, and you'll see in the fight that Tyron takes the back. Oh, अच्छा, he punches him. Oh, he breaks it. Sultan breaks it. And puts him up for the Sultan slam. Damn. And now fireman's carry. अच्छा, this is the signature move, huh? And he lands like that. Lands like on Tyron. hero pose. Hero pose, Superman hero landing. And his opponent Tyron has just been choked out or knocked out or something, because generally what happens is, to make someone go unconscious, either you punch them in the knockout areas and they get knocked out, or you choke them unconscious. Right. What happened in Tyron's case is he went unconscious, but nothing happened to his head. He fell on his back. Yeah, so he had the wind knocked out of him. So what happens when that happens? You would like, सांस नहीं आता. ऐसा होता है. Right. You don't go dead, sleeping. You know, that doesn't happen. So that is a small mistake on their part. Yeah. But like फिल्म में यही दिखाना चाहते हैं कि सुल्तान एक बार आपको फायरमैन कैरी कर देता है, तो फिर उसके बाद आप उठते नहीं है. The other guy is standing up. Referee now thinks, let me just check on the guy who's down. Let me figure out what's happening. So तू कह रहा था कि क्या बोलते हैं, प्रमोटर सुल्तान के फेवर में, रेफरी टायरन के फेवर में. पिछली बार भी जब सुल्तान पड़ा हुआ था, वो टायरन से पूछ रहा था, भाई तेरा हाथ ठीक है? He doesn't care about Sultan at all. एक बार नहीं पूछा कैसे हो. तो अभी राउंड खत्म नहीं हुआ है, फाइट खत्म नहीं हुई है, फाइट इज स्टिल लाइव. रेफरी इज नॉट वेव्ड इट ऑफ. Exactly. So actually one person is down, other one's up, fight's not stopped, it's still live. Now let's see what happens next. Ideally सुल्तान को जंप ऑन करके 2-3 और पंचेस मारने चाहिए थे, जहाँ पे टीके वो स्टॉपेज हो जाती. लेकिन सुल्तान जेंटलमैन है. But generally अगर कोई ऑलरेडी सो गया है and the other guy walks off, it's a walk off KO. Walk off KO, yeah. Walk off KO. True. So referee is not even involved. खत्म है fight. Right. But अभी ऐसा हुआ नहीं है. And now this is like, oh no. So now if you see referee not stopped the fight, but Sultan is also knocked out now. So fight still on. One guy is knocked out and the other guy has also been knocked out. So double KO now. डबल KO, एग्जैक्टली. ये भी हमने देखा है प्रोफेशनल MMA में, UFC में नहीं, लेकिन हाँ और ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि दोनों बंदों ने एक दूसरे को पंच मारा, दोनों नॉकआउट हो गए, एंड it's what is it? It's a double KO or is it a draw? It's a draw. It's a double draw. It's called double KO, but it's a draw. Yeah, it's a draw. Okay. Because I've seen the movie also long time back. So obviously Sultan wins. Yes. That is seen as a knockout. The referee did a lot of things wrong in that fight. lot of things wrong. So he will probably get fired after this. Hopefully. ये पता नहीं कौन सी सैंक्शनिंग बॉडी का रेफरी है, इसको और इवेंट्स नहीं मिलने चाहिए भाई. Very bad referee. So he should have waved it off straight away. So because MMA is such a violent sport, right. कभी भी आपको रेफरी को लगता है कि कोई फाइटर इंजर्ड है, इंजरी होने वाली, नॉकआउट होने वाली, he calls off the fight. There is no reason why anything should be continued. सुल्तान का रिब टूटा, फाइट शुड बी कॉल्ड ऑफ. टायरॉन का किमोरा से शोल्डर टूटा, फाइट शुड बी कॉल्ड ऑफ. You know, all these positions should be stoppages. Yeah. Rather than continuing. Yeah, and these are like serious injuries. हड्डी वर्जी टूट गई तुम्हारी. वैसे कट्स वट्स पे भी कॉल ऑफ कर देते हैं. You know, अगर ऐसा कट लगा कि आपके आंख में ब्लड जा रहा है और आपकी विजन इम्पेयर्ड हो गई, वहीं पे they'll call it off, डॉक्टर स्टॉपेज.
And that's one of the things with UFC and all the big promotions. There hasn't been any serious injury or death in these promotions because they're so careful about the fighters. And that's the good thing about MMA, that it's the referees, judges, associations, they are there for the safety of the fighter. Right. You know, it's not always about the audience कि चलने दो, पिटने दो, टूटने दो. ये sport ऐसा नहीं है जैसा दिखाते हैं movies में. Right, right. We're very safe and we take care of our fighters. Right. Of the competitive fights that you've seen, competition fights, ring fights, cage fights in as shown in film, सुल्तान की फाइट कोरियोग्राफी और रियलिस्टिक एंगल कैसा है? बहुत अच्छी फाइट थी, but again they've positioned this movie as pro takedown, so it's a very wrestling centric movie. True. So even though Yeah. it's an MMA tournament, nobody calls it MMA, they call it pro takedown. So what happens in this fight, a lot of times you get to ground fighting positions where Brazilian jiu-jitsu or grappling comes in, but they don't show it because it's not a movie based around Brazilian jiu-jitsu or grappling. Right. For example, अगर कोई fighter turtle position में है, you don't lift him up on the ground and put him again on turtle position. Sure. That does nothing. Yeah, yeah. Already turtle में position में है, then you attack him in turtle, choke him out, get him to better position. यहाँ पर Tyrone is picking him up, wasting energy, throwing him down again to the same position. यहाँ से उठाया है, तो ये बंदा ऊपर का is wasting his energy. Instead, control him, strike from there, put a choke in, and that's how you would take it. But I think extremely good fight scenes. They haven't explained how Sultan learned how to kick, how he learned how to punch so well. Because ट्रेनिंग मोन्टाज Yeah. दिखाया है ना रणदीप हुडा के साथ. the training for wrestling and the training for striking for MMA are very different. Yeah. So I know because I've trained with so many wrestlers. उनका fighting stance ही अलग होता है. तो if you are wrestling, अगर आप right handed हो तो आपका right leg, right hand आगे रहता है. अगर आप boxing करते हो तो वो उल्टा होता है. True. लेफ्ट आगे रहता है if you are right handed. तो wrestlers को switch करना बहुत मुश्किल होता है. And the way they keep their weight, like wrestlers keep their center of gravity बहुत low. Right. So they have to stay low to attack. While in boxing, you've got to be on your toes. Right. You know, Muay Thai weight has to be पीछे. So the footwork becomes very complicated for wrestlers because they haven't learned anything else. They've learned wrestling. Right, तो right. उसमें किक भी फेंक रहा है सुल्तान, कॉम्बिनेशन भी फेंक रहा है. ये बहुत साल लगते हैं ट्रेनिंग करने में. I don't know ट्रेनिंग मोन्टाज में कितने साल मैंने ट्रेनिंग किया. शायद 6 महीने में सीख लिया था, 6 लेकिन महीने. you know सुल्तान इज अ फास्ट लर्नर, रणदीप हुडा इज अ ग्रेट कोच. Great coach, yeah. So he's outstriking Tyrone. Damn, he's outstriking Tyrone. That's great. Who's been a 4-time welterweight champion in the UFC. Very impressive. Yeah, Sultan, hats off. For sure. So, I mean, like हमने इससे पहले ब्रदर्स मूवी का भी ब्रेक डाउन किया था, तो उसमें हमें थोड़ा सा और ग्राउंड गेम देखने को मिला था. अभी ये एक ही हम फाइट ब्रेक डाउन कर रहे हैं सुल्तान की. मे बी इन द अदर फाइट्स हमें थोड़ा सा और जिजित्सू और ग्राउंड एंड पाउंड एंड दीज ग्राउंड पोजीशंस जो कि काफ़ी डोमिनेंट हो सकती हैं वो देखने को मिले. सो विल सी. We saw one attempted straight arm lock. Yeah. Which Tyrone was able to reverse and then rock bottom. तो सुल्तान उसने वो किया, but उसके अलावा ज़्यादा जिजित्सु देखने को नहीं मिला. But we saw striking, we saw Muay Thai clinch, we didn't see any elbows in this fight. Elbow नहीं देखा हम लोगों ने. True. And we saw wrestling obviously, Yeah, and not so much jiu-jitsu. But very good fight, very exciting. And Tyrone Woodley is a badass fighter. Yeah. He's a really good fighter, and Sultan beat him up. Yeah. Yeah. And this is the time when he was the champion. He was the reigning UFC champion. True. So, In fact, इस फिल्म के बाद he defended his title 2 times against Stephen Wonderboy Thompson, and then he defended against Darren Till. Dan Till also. Yeah. लेकिन फिर जब कुमारू उस्मान ट्रेनिंग कर रहे थे, उनने शायद सुल्तान मूवी देखी और उनने कहा टायरोन को फोड़ने के लिए भाई अब प्लान मैं सुल्तान मूवी से लूंगा. एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल एट दैट. They were both training in the same gym, no? They were training at Oh, and American Top Team. But then I think Tyrone switched to Rufus Sports. Yeah. Yes. So, Sultan, the most iconic Indian MMA movie. इसको देख के Indian wrestling और pro takedown movie. और इसको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हुए. बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुल्तान मूवी से काफ़ी पहले काफ़ी सारे हमारे इंडियन रेसलर्स हैं अखाड़ा स्टाइल में जो रेसल करते थे, जो MMA में ट्रांजिशन कर चुके हैं. अनूप कुमार इज़ वन गाय हु कम्स टू माइंड. भरत खंडारे, former SFL champion. Roshan Mainam, yes, absolutely. Roshan Mainam also comes from that. And now Ritu Fogart is one of the more famous names जो अखाड़ा स्टाइल रेसलिंग से MMA में स्विच करी हैं. And because wrestling is such a big part of mixed martial arts, इतना मुश्किल होता है इसको सीखना. It's one of the most difficult martial arts to learn. कि जिन लोगों का wrestling में बेस होता है, they can transition pretty easily into MMA, but time लगता है.
बिकॉज लाइक आई सेड इतना डिफरेंट स्पोर्ट है MMA रेसलिंग, बट जिनको रेसलिंग आती है एंड दे आर एबल टू लर्न स्ट्राइकिंग एंड जिu-jitsu, दे बिकम वेरी गुड एट MMA, वेरी सक्सेसफुल. ट्रू. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ऐसी कौन सी कंपटीशन फाइट्स हैं इंडियन मूवीज़ में, चाहे रिंग फाइट हो या केज फाइट हो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं. एंड विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड ब्रेकडाउन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मेरा नाम है वॉन सक्सेना. दिस इज सिद्धार्थ सिंह, साइनिंग ऑफ. Take care. Bye.